السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے ندامت اور رائٹر ہے پلوشا صافی۔ ان سے ہم نے یہ ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ ہماری ناول باس ہیرو بیس ہے، مضبوط ہیروئن ہے اور سیکنڈ میرج بیس ناول ہے، بیسٹ فرینڈس اسٹوری ہے، ایکشن ہے اور رومانٹک لو اسٹوری ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ یاشم بے صبری سے رانا کا منتظر تھا۔ اس کی نظریں مین انٹرنس پر جمی ہوئی تھی، پر رانا اس کے دیکھ لینے سے پہلے ہی تیزی سے گزر کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ یاشم نے بار بار وقت دیکھتے ہوئے بالآخر خود اس کے کیبن میں جا کر پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ رانا کے کیبن میں آ کر یاشم کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ تو کیا سوچا آپ نے؟ یاشم نے آبرو اٹھا کر پر امید نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ رانا نے سیدھے سادے انکار کر دیا۔ یاشم کو اپنے کانوں سنے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ رانا میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ لوگ پانے کے لیے محبت کرتے ہیں، پر میں نے نبھانے کے لیے کی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ نبھاؤں گا۔ یاشم نے رانا کو یقین دہانی کروائی، پر رانا سر نفی میں ہلاتے اس کے عین سامنے آ گئی۔ لیکن میں آپ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ کوئی زبردستی ہے؟ حق کیا، میں اپنے حال میں ٹھیک ہوں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے آپ کو صرف دوست کی نظر سے دیکھا ہے۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دی۔ رانا نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں نمی امڑتے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ اوپر میرا کیا ہوگا؟ میں ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوں، پر دل کے معاملات میں اتنا ہی کمزور ہوں۔ آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہے۔ یاشم کو لگا واقعی اس کا دل رک جائے گا۔ وہ میرا سر درد نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھ کر محبت نہیں کی تھی۔ اب آپ رہ سکتے ہیں میرے بغیر یا نہیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میری طرف سے انکار ہے اور اب دوبارہ مجھ سے شادی کا ذکر مت کرنا۔ رانا نے سرد مہری سے جواب دیا اور خود کیبن سے باہر نکل گئی۔ یاشم کا دل نشتر سے چیر دیا گیا تھا۔ باج کھلے، وہ اس نے آنکھیں سختی سے مینچے رانا کے انکار کو تسلیم کرنا چاہا پر نہیں کر پایا۔ ڈھلے جن سے محبت کا دعویٰ ہو انہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری سانس تک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ابھی تو یاشم کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ رانا آفس کے چھت پر آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ بے آواز رونے لگی۔ آئی ایم سوری یاشم، مجھے معاف کر دینا۔ میرے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کر دیا ہے۔ میں مجبور ہوں۔ آئی ایم سوری، دل ہی دل سوچتے وہ بے دم سی دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کر کے وہ یہ سوچنے لگی، آخر اسے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی اجازت کب ملی تھی؟ نوریز کے وقت حامی کا فیصلہ بھی اس نے دباؤ میں لیا تھا، اور اب یاشم کے وقت انکار کا بھی۔ نوریز صدیقی لڑکیوں کے دل پر راز کرنے والا رانا کے دل کا مالک بنے گا، یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ گھر نہیں، پر قسمت اس کا دل نوریز کے ہاتھوں ہی توڑے گی، یہ بھی رانا کے گمان میں نہ تھا۔ ماضی جوانی کی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہی آیت کی خوبصورتی مزید نکھر گئی تھی۔ وہیں رانا بھی دلکش دوشیزہ سے کم نہ تھی۔ دوسری طرف نوریز کے نین نقش اور بھی ٹھوس ہو گئے تھے۔ لمبا قد، چوڑے شانے، مضبوط جسامت کے ساتھ ساتھ چھوٹی تراشی داڑھی مونچھ اور گھنے بال اس کی شخصیت کو سیر انگیز بنا گئے تھے۔ اس صبح نوریز نہا کر یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ پلیز نہ ڈے، جب اس نے رانا کی آواز سنی، رانا رکشے سے اتر کر صدیقی ہاؤس میں داخل ہوئی اور آیت کو پکارنے لگی۔ آیت آنٹی، کہاں گئے سب؟ ہر سین دیکھتے ہوئے رانا نے نیچے پورشن میں کسی کو نہ پا کر دوسری منزل کا رخ کیا۔ آیت کے کمرے میں جھانک کر وہ سی ڈھیریوں کے سرے پر پہنچی تھی کہ اسے اپنے عقب میں کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ اب وہ بھی رانا مڑی تو نوریز نے شرارت کرنے کے انداز میں اسے ڈرایا۔ رانا سچ میں ڈر گئی اور لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ لیکن چیخ پڑی، اس کا پیر پھسل کر دوسری سیڑھی پر آ گیا تھا، لیکن ہاتھ ایک مضبوط گرفت میں ہونے کے باعث وہ مزید نیچے گرنے سے بچ گئی۔ نوریز نے جھٹ سے رانا کا دائیں ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا اور پھر دھوپر کھینچ کر سیدھا کیا۔ آفت، کیا کر رہی ہو یہاں؟ جتنی وسیع شخصیت تھی اتنی ہی دمدار آواز آیت کے حوالے سے نوریز رانا کو آفت بلایا کرتا تھا۔ رانا کا ہاتھ اب بھی نوریز کی مضبوط گرفت میں تھا، اس لیے اس کے اتنے قریب ہونے پر پہلی مرتبہ رانا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ نوریز کے کھلے گریبان سے جھلکتے چوڑے سینے کو دیکھ کر رانا متذبذب ہونے لگی۔ وہ آیت سے ملنے آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ نظریں نیچی رکھے اس اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ تو مما کے ساتھ کالج چلی گئی ہے۔ نوریز نے بے باکی سے شانے اچکائے، اوپر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نہ، رانا کو آیت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے زبردستی اپنا ہاتھ نوریز کی گرفت سے آزاد کرایا۔ ہم پر اسے تم سے ملے بغیر چین نہیں آتا۔ تم اس کے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہو۔ نوریز پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گھوم کر رانا کے پیچھے آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رانا نوریز کی
गर्म सांसें अपने कान के लौह पर महसूस करके कांप उठी और तेजी से इसके हिसार से हट गई। इससे पहले मुझे कॉलेज में ना पाकर आयत निकल जाए, मुझे जल्दी से कॉलेज पहुंचना चाहिए, राना ने हल निकालते हुए कहा और सीढ़ियां उतरने लगी। और मैं इसी साइड जा रहा हूँ, चाहो तो मैं छोड़ देता हूँ। नौरेज अपने खुले गिरेबान के बटन बंद करते उसके पीछे आया। राना ने एक नजर नौरेज को देखा और साथ आने के लिए मान गई और बाइक पर बैठ जाएगी। नौरेज ने मानी खेज नजरों से उसे देखा। अजी, बस आप जल्दी से कॉलेज पहुंचा दो, हाँ, राना ने संजीदगी से जवाब दिया। नौरेज ने महजूज होते हुए सर को खम दिया और अपनी बाइक स्टार्ट की। राना मुतजब होती बाइक के आखिरी कोने से टिक गई। नौरेज उसके बैठने के अंदाज पर गुस्सा होने लगा। मैडम, एक जंप आएगा, पीछे गिरी पड़ी होगी, फिर ठीक से बैठो। नौरेज ने सख्ती से तनबीहा किया तो राना लब दांतों में दबाए थोड़ा आगे को हुई। इसका बाजू नौरेज की पीठ से मस होने लगा। अमेग, नौरेज साइड मिरर में राना के परेशान कुन तासुरात देखकर मुस्कुराया और बाइक दौड़ा दी। आयत ने राना की तलाश में पूरा कॉलेज छान मारा पर वो ना मिली तो मायूस होकर वापस जाने लगी थी। तभी मेन गेट पर उसे राना नौरेज की बाइक से उतरती हुई नजर आई। मैं यहाँ बुखार में पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम भाई के साथ घूम रही हो। आयत ने खफकी में राना के कंधे पर थपकी मारी। आयत, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई थी और वहां पता चला कि तुम कॉलेज आई हो, इसलिए नौरेज मुझे ड्रॉप करने आ गए। राना को आयत का तबसरा बुरा लगा, इसलिए फौरन से वजाहत पेश की। इन दोनों की तकरार से महजूज होते नौरेज सिद्दीकी अपनी भूरी आंखें चारों तरफ घुमाकर गर्ल्स कॉलेज में आती जाती लड़कियों को देखने में मसरूफ था। अब आई हो गया आपका, कर लिया गर्ल्स कॉलेज का नज़ारा, चलो अब जाए, यूनी नहीं जाना आपको, क्लास में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। आयत कमर पर हाथ रखे नौरेज के जानिब मुतवज्जा हुई। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर वारिस सिद्दीकी के बेटे को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है। नौरेज ने मगरूर अंदाज में अपने शर्ट का कॉलर उचकाया और बाइक स्टार्ट की। वो बहुत देखे हैं आपके जैसे, चलो जा, आपसे यहाँ कोई नहीं फंसने वाली। आयत ने हाथ हवा में हिलाकर नौरेज को जाने का इशारा किया। नौरेज नाक चढ़ाकर रवाना हो गया। आयत, बड़ा भाई है वो तुम्हारा, ऐसे बात करते हैं बड़े भाई से। राना को आयत का ये रवैया अच्छा नहीं लगा। और ये छोड़ यार, मेरा और भाई का चलता रहता है, चल तुम्हें कुछ बताना है। पता है, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा। आयत ने राना के बाजू में अपना हाथ डाला और उसे लिए कॉलेज के अंदर बढ़ गई। हाल याशम का ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। जा जाकर उसे राना की रिजेक्शन याद आती और वो उदास हो जाता, इसलिए घर जल्दी आ गया। याशम, क्या हुआ आज जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? फरीहा बेगम ने उसे मुखातिब करके रोका। मैं आपको नहीं समझा सकता माम, बल्कि मैं किसी को नहीं समझा सकता कि इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। याशम की हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा वो यही गिर पड़ेगा, इसलिए माम को नजरअंदाज करके कमरे में चला गया। फरीहा बेगम उसकी कैफियत समझने की कोशिश करती वही खड़ी रही। राना ने 2 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो याशम को पर हकीकत तस्लीम करने के लिए वक्त फराहम कर रही थी। हाँ, वहीं याशम रोज सूट बूट में तैयार ऑफिस आता और सबसे पहले राना के केबिन में चलाता, लेकिन खाली मेज देखकर मायूस होकर मूड जाता। इस दिन अलजीना स्कूल के छुट्टी के टाइम मम्मा का इंतजार कर रही थी। जब उसके सामने जदीद मॉडल की चमकती कार रुकी और इसमें से गिरे कलर का डिनर सूट पहने हशाश बशाश सा तैयार नौरेज सिद्दीकी बरामद हुआ। हाँ है अलजीना। आंखों पर से गिलासेस हटाकर उसने झुक कर अलजीना को देखा। अलजीना अनजान शख्स के जबानी अपना नाम सुनकर हैरान हुई। वो आप मुझे जानते हैं? उसने हैरत भरी खुशी से पूछा। हाँ, मैं आपको जानता हूँ, चलो मैं आपको लेने आया हूँ। नौरेज उसका हाथ थामे सीधा हुआ। मुझे तो आज मम्मा लेने आने वाली थी। जैनी ने सर पूरा ऊपर करके नौरेज को देखा। वो आपकी मम्मा ने ही मुझे भेजा है, एक चेवली, वो मसरूफ हैं। नौरेज ने अलजीना के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और गहरी नजर से जैनी को देखा था। ऊपर मम्मा ने तो नहीं बताया, क्या आप मम्मा के दोस्त हो? जैनी उसके साथ चलने पर राजी ना हो सकी। हाँ, मैं आपकी मम्मा का दोस्त हूँ और मैंने कहा ना, आपकी मम्मा मसरूफ है इसलिए मुझे आपको लेने भेजा है। चलो हम वंडरलैंड जाएंगे तो खूब इंजॉय करेंगे। नौरेज ने उसे घुमाने का लालच दिया। अलजीना की आंखें वंडरलैंड के नाम पर चमक उठी थी, लेकिन दिल में एक खलिश सी बाकी थी। ऊपर मम्मा को बगैर बताए जाऊंगी तो वो परेशान हो जाएगी। अलजीना ने नौरेज की ऑफर ठुकरा दी। नौरेज की आंखों में सख्ती दराई मगर अपने आप को कंपोज रखे रहा। मैं आपकी मम्मा को कॉल कर दूंगा। ओके, नौरेज ने बेतमाद अंदाज में सर को खम दिया। अलजीना दिल ओना दिल उसके साथ कार में आकर बैठ गई। अंकल, मम्मा को कॉल करे ना। जैनी का दिल मुतमईन ना हो सका। उसने नौरेज की सच्चाई जांचने की कोशिश की। नौरेज ने स्पॉट अंदाज में मोबाइल निकाला और कुछ बटन दबाकर अलजीना के सामने जताते हुए फोन इस अंदाज में कान से लगाया कि जैनी कॉल पर मौजूद नंबर ना देख सकी। वो ये भी अंदाजा नहीं लगा सकी कि कॉल वाकई मिल गई है। यानी हाय राना। हाँ, मैंने अलजीना को पिक कर लिया है।
पर मैं उसे वंडरलैंड लेकर जा रहा हूँ। नॉरेज मोबाइल फोन कान से लगाया अदाकारी करने लगा। अल्जीना उसके जबान से अपनी मम्मा का नाम सुनकर कदरे मुतमाइन होने लगी। हाँ, मैं शाम तक उसे घर ड्रॉप कर दूंगा, तुम परेशान मत होना। ओके बॉय, नॉरेज ने खुश दिली से तसल्ली बख्श जवाब देते मोबाइल जेब में डाला और स्टीयरिंग पर हाथ रखे अल्जीना के जानिब मुड़ा। आपकी मम्मा ने इजाजत दे दी है, अब चलें। नॉरेज के लहजे से झलकता कॉन्फिडेंस पर अल्जीना ने सर अस्बात में हिलाया और सीट से टेक लगाकर बैठ गई। हुसैनी बीबी, तुम जितनी होशियारी कर लो, मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम्हें काबू करना अच्छे से आता है मुझे। नॉरेज ने कनखियों से अल्जीना को देखकर सोचा था। राना और शुएब साहब ट्रैफिक जाम के बायस स्कूल देर से पहुंचे। तो राना ने चौकीदार से जैनी को बुलवाने के लिए कहा तो वो हैरान परेशान राना का मुंह देखता रहा। मैडम, अल्जीना तो थोड़ी देर पहले एक कार में चली गई। चौकीदार ने आम अंदाज में जवाब दिया, पर राना के पैरों तले जमीन निकल गई। वो किसके साथ गई है और तुमने जाने क्यों दिया? हमेशा में, या मेरा भाई ही लेने आते हैं, कि फिर किसी अनजान के साथ कैसे जाने दिया? राना चौकीदार पर बरस पड़ी। वो अच्छे खासे सूटेड बूटेड मर्द थे और जैनी भी अपनाइयत से बात कर रही थी। सोचा आपके अपने हैं, इसलिए चौकीदार को मामला समझ ना आया। वो अपने जहन पर जोर देते उस शख्स का होलिया बताने लगा। अबाबा कौन ले गया है? वही जैनी को राना ने शुएब साहब के जानिब रुक करके सवाल किया। शुएब साहब उसे समझाकर दोबारा चौकीदार से मालूमात करने लगे। सूटेड बूटेड मर्द और चमकती बड़ी कार। चौकीदार की वजाहत पर राना के जहन में याशम का अक्स लहराया। थे वो गुस्से से दांत पीसती बाबा के सिमत मुड़ी। अबाबा मैं अभी आती हूँ। वो शुएब साहब को इत्तला देकर टैक्सी स्टैंड के सिमत भागी। अपने ऑफिस का एड्रेस बताकर वो पूरा रास्ता याशम की इस हरकत पर उताब खाती रही। ऑफिस की इमारत में दर आते ही वो दफ्तर के सारे अखलाकियात बालाए ताक रखकर याशम के केबिन में दाखिल हुई और झपट कर उसका कॉलर जकड़ लिया। ये क्या हरकत है? याशम, अल्जीना कहाँ है? राना ने इसका कॉलर झंझोड़ा। मुझे नहीं पता अल्जीना कहाँ है। याशम शाक हो गया था। और झूठ, मैंने आपका प्रोपोजल ठुकरा दिया तो आप मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? राना की आवाज भीग चुकी थी। राना के खदशे पर याशम की बेयकीनी से आंखें फैल गई। राना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। याशम ने अपनी सफाई में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी वापस करो याशम प्लीज, उसे इन सब में मिट घसीटो, वो बस मासूम सी बची है। राना बाकायदा मिन्नत करने लगी। मैंने आपकी बेटी को किडनैप नहीं किया राना, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपसे हाँ करवाने में ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगा। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि अपना मतलब निकालने एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल करूं। याशम, राना को कंधों से थामकर उसकी मतरोम आंखों में देखते हुए गिराया। राना के आसाब ढीले पड़ गए। वो रोते हुए याशम की बाजुओं में बेदम होने लगी। राना, संभालो खुद को, मुझे डिटेल से बताओ, अल्जीना कहाँ है? याशम ने उसे अपनी सीट पर बैठाया और खुद दो जानू होकर उसके आगे बैठा। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं जैनी को? राना ने गीली सांस अंदर खींचकर खुद को कंपोज करते पूरा वाकया याशम के गोश गुजार किया। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, अल्जीना जहां भी है और जरूर मिलेगी। याशम ने अपने जानिब से राना को दिलासा दिया और अल्जीना को तलाश करने की तरकीब सोचने लगा। अल्जीना और नॉरेज वंडरलैंड में शुगल करते रही। वाटर स्लाइड के दौरान जैनी खौफजदा हुई। हुक्म जैनी, यू कैन डू। नॉरेज ने इसकी हौसला अफजाई की। अनही में नहीं जा सकती, मुझे तैरना नहीं आता। जैनी वाटर स्लाइड पर बैठने से सिजक रही थी। ओके, मेरे साथ बैठोगी ना? नॉरेज ने दूसरा रास्ता निकाला और खुद स्विमिंग ड्रेस पहनकर वाटर स्लाइड पर आ गया। जैनी खुशी खुशी नॉरेज की गोद में उसे मजबूती से थाम कर बैठी तो नॉरेज ने एक झटके से स्लाइड के हैंडल छोड़ दिए और वो दोनों पानी के बहाव के साथ स्लाइड होते हुए नीचे पोल में आ गिरे। पानी में आकर नॉरेज ने अल्जीना को पानी से ऊपर उठा लिया था और तैरते हुए किनारे पर आ गया है। हाँ, बहुत मजा आया, आप बहुत अच्छा स्लाइड करते हो, दोबारा करें प्लीज। जैनी उछलकर नॉरेज को मनाने लगी। नॉरेज लबों पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए फिर से स्लाइड पर चढ़ने लगा और इस तरह इन दोनों ने 3 दफा वाटर स्लाइड के मजे लिए। ओके, अब बस, पानी में ज्यादा खेलना अच्छा नहीं है, अब बीमार हो जाओगी। नॉरेज ने आंखें दिखाई तो अल्जीना लब भेंजे उसकी की बात मानने की पाबंद हो गई। खुशक कपड़े पहनकर वो दोनों कुछ देर शाम की धूप में बैठकर सुस्ताने लगे। हुसैनी, पापा की याद नहीं आती? नॉरेज ने उफुक में डूबते आफताब पर नजर जमाए हुए नरमी से पूछा था। याद तो आती है, पर पता नहीं मेरे पापा कौन है, कहाँ है? जैनी ने आह भरी नॉरेज ने इस इंकिशाफ पर बेयकीनी से उसे देखा तो राना ने जैनी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, मुझसे अनजान रखा है। राना, अल्जीना में मेरा खून है तो तुम यूं उसे मुझसे गाफिल नहीं रुक सकती। नॉरेज ने जबड़े सख्त कर लिए। अगली दफा मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जाऊंगा, नॉरेज ने पूर सोच अंदाज में कहा तो जैनी एकदम खड़ी हो गई। तो आप जानते हो मेरे पापा को? अल्जीना की खुशी दुगुनी हो गई थी।
और बिल्कुल जानता हूँ, बहुत मीस करते हैं वो तुम्हें। नौरेज ने ज़ैनी के गीले बाल पीछे करते उसके गाल पर प्यार किया और उसे अपनी गोद में बैठा कर मजबूती से अपने हिसार में ले लिया था। और मीस करते हैं तो मिलने क्यों नहीं आते? मम्मा को क्यों छोड़ दिया उन्होंने ज़ैनी का छोटा दिमाग तेज तेज सवालात बनाने लगा। और बहुत जल्द वो आपकी मम्मा से मिलने आएंगे, बस कुछ महीनों की बात है। नौरेज का लहजा सख्त होने लगा। उसे राना पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो आयत और सदीफ बच्चों को उनके कई टेकर के पास छोड़कर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। ड्राइव करते हुए सदीफ खामोश रहा। अहम कहाँ जा रही हैं? आयत ने दिल फरेब अंदाज में कहते हुए सदीफ के कंधे पर सर रुक दिया। तो तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। सदीफ की आवाज भी लचक थी, लेकिन इसके जुमले पर आयत हंस पड़ी। हो वो नहीं, प्लीज नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। खुदा का वास्ता मेरे साथ कुछ मत करना, मैं शादीशुदा हूँ। आयत फिल्मी अंदाज में हल्के हल्के हाथों से सदीफ के बाजू पर छोटे छोटे मुक्के मार कर दकारी करने लगी। सदीफ के लबों को शरीर मुस्कुराहट छू गुजरी। अब वैसे किडनैपर जी, मेरे साथ क्या करने वाले हो? आयत तजस्सुस से पूछती आगे को हुई। और बहुत ज्यादा प्यार। सदीफ ने चेहरा उसके सिमट करके बेरहमाना तासुरात बनाए जवाब दिया। आया, अब मैं कहाँ जाऊं? कोई बचाओ मुझे इस जालिम किडनैपर से। आयत ने मुंह बनाए, सर पर हाथ मारा। सदीफ ने इसकी बचकानी अदाकारी पर सर झटकते हुए एक फार्म हाउस के सामने कार रोकी। आयत ने विंड स्क्रीन के बाहर इस फार्म हाउस हो देखा तो इसकी शरारत भरी दिलचस्पी खत्म हो गई। वो वारिस साहब का पुराना फार्म हाउस था जो कभी नौरेज इस्तेमाल किया करता था। सदीफ, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आयत ने हैरानगी से सवाल किया था। तो तुम चलो, पता चल जाएगा, सदीफ ने अपनी सीट से उतरते हुए कहा। आयत की धड़कन तेज हो गई। वो अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश करती उसके पीछे उली। फार्म हाउस के दरवाजे तक आकर सदीफ रुक गया और आयत को अंदर जाने का इशारा किया। आयत बे यकीनी सदीफ को देखती मुस्तरिब होते अंदर दाखिल हुई तो सामने खड़े सरापे को देखकर दंग रह गई। पापा। वारिस साहब को देखकर आयत की जबान से बेख्तियार ये लफ्ज निकला। आयत, मेरी बच्ची। वारिस साहब 5 साल बाद अपने लखते जिगर को देखकर जज्बाती हो गए। आयत तेजी से आगे आकर उनसे लिपट गई। वारिस साहब ने उसे सीने से लगाकर मजबूती से अपने हिसार में लिया। आयत, कैसी हो? मुझे कॉल आई थी कि तुम। वारिस साहब लरजते हुए सरता पैरों से देखते उसकी तंदुरुस्ती की तस्दीक करने लगे। ओ पापा, आप कैसे हैं? ये आपने अपनी क्या हालत कर ली है? आयत अश्कबार आंखों से वारिस साहब की सफेद दाढ़ी और आंखों के गिर्द हल्के देखकर मुस्तफसिर हुई। बेटा एक हारा हुआ बाप और कैसे होगा? वारिस साहब के आंसू जारी हो गए। नहीं पापा, प्लीज ऐसे मत रवें। आयत ने उनके आंसू साफ करते उन्हें सोफे पर बैठाया। वारिस साहब सर झुकाए। 5 सालों की आप बीती सुनाने लगे। आयत ने उनका हाथ थामे दरवाजे की जानिब देखा जहां सदीफ मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रहा था। आयत उसकी इस मेहरबानी पर सर को खम देकर मशकूर हुई और अपने रुखसार साफ करते पापा के जानिब मुतवज्जा होकर उनकी दास्तान सुनने लगी। 2 घंटे तक इन बाप बेटी की ना तमाम बातें चलती रही। सूरज पूरा गुरूब हुआ तो अलजीना को घर जाने का ख्याल आया। अब मुझे घर ड्रॉप कर दी, शाम हो गई, मम्मा के पास जाना है। अलजीना उठकर जाने लगी। आज मेरे घर चलते हैं, मैं नई मूवीज लाया हूँ, पर वसन वाली और बारबी डोल वाली, मिलकर देखेंगे। नौरेज ने भूरी आंखों में ढेर सारी दिलचस्पी भरकर ललचाया। नहीं, आज के लिए काफी है, अब मम्मा के पास जाना है। अलजीना ने नौरेज की एक नहीं सुनी और घर जाने की जिद करने लगी। बार बार मम्मा के पास जाने की जिद करते जब ज़ैनी रोने वाली हो गई तो नौरेज को मजबूरन मानना पड़ा। दूसरी जानिब बट हाउस में ना किसी ने खाने का लुकमा लिया था, ना पानी का घूंट भरा था। अगर अगवा बराए तावान होता तो अब तक किडनैपर्स की कॉल आ जानी चाहिए थी। हमदान लाउंज में दाएं से बाएं चक्कर काटते गोया हुआ। शुभ साहब और आतरा बेगम सर हाथों में गिराए परेशान बैठे थे। राना ऑफिस से खाली हाथ लौट आई थी। याशम नहीं तो और कौन? वो इस शख्स के मुतालिक सोच सोच कर दिलगीर होने लगी। सबकी जबान पर अलजीना की खैरियत से होने की दुआएं जारी थी। तब गेट पर दस्तक हुई। हमदान ने तेजी से बाहर निकल कर गेट खोला। ज़ैनी आइसक्रीम खाते मामू को मुस्कान से नवाजते घर के अंदर दाखिल हुई। हमदान ने फौरन से सर गली में निकाल कर झांका पर उसे वहां किसी का नाम और निशान नहीं मिला। ज़ैनी कहाँ चली गई थी? के साथ थी। हम कितना परेशान हो रही थे। राना ने घुटनों के बल बैठकर ज़ैनी पर सवालों की बौछार कर दी। मम्मा, उन्होंने तो कहा आपने उन्हें भेजा है। बहुत अच्छे थे, हमने बहुत मजे किए। ज़ैनी सबके तवक्कुआत के बरक्स खुशी खुशी वंडरलैंड की रुदात सुनाने लगी। और मैंने किसी को नहीं भेजा था। कैसे दिखते थे? आप उन्हें जानती हो? राना ने उसे कंधों से थामे संजीदा किया। अब बहुत प्यारे थे, लंबे चौड़े सूट और महंगी कार वाले। मामू से भी बड़ी बॉडी थी। ज़ैनी के जहन पर नौरेज की सहरंगेज शख्सियत नस्ब हो गई थी। राना के आबरू फैल गए। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो तेजी से उठी और कमरे की जानिब भागी। थोड़ी देर बाद वो एक तस्वीर हाथ में लिए फिर से लाउंज में आई और वो तस्वीर अलजीना के आगे की हकिया ये थे।
हाँ वो नॉरिस की तस्वीर थामे राना के हाथ में हल्की कपकपाहट होने लगी। सब में बेचैन नजरों का तबादला हुआ। हाँ यही थे वो, आप जानती हो उन्हें मम्मा। अल्जीना नॉरिस की तस्वीर देखकर खुशी से चहक उठी। राना के हाथ से तस्वीर फिसलकर फर्श पर गिर पड़ी। खराना क्या शोएब साहब ने उसे संभाल कर सोफे पर बैठाया। अचैन से जीने क्यों नहीं दे रही वो मुझे। अब बाबा, अब वो मुझसे मेरी बेटी छीनना चाहते हैं। राना ने सर हाथों में गिरा दिया। शोएब साहब और आतरा बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की पर राना मुस्तरब रही। नहीं बाबा, मैं उन्हें मेरी बेटी नहीं लेने दूंगी। वो मुझसे अल्जीना को दूर नहीं कर सकते। नफरत से नॉरिस को सोचते हुए राना ने पुख्ता इरादा किया। याशम अपना काम खत्म करके पुलिस नफरी लिए बट हाउस पहुंचा तो जैनी को घर पर देखकर हैरान हो गया। जैनी, कहाँ थी आप? उसने मासूमियत से जैनी की आंखों में देखकर पूछा था। मम्मा के दोस्त के साथ थी। जैनी ने लापरवाही से शाने उचकाए। ओ वो भी, कितने दोस्त है आपकी मम्मा के? याशम ने दांत पर दांत जमाए हुए राना को देखा था। याशम के इस तबसरा पर राना के आबरू तन गए तो वहीं शोएब साहब तैश में आ गए। सबसे पहले उन्होंने पुलिस नफरी को वापस भेजा और फिर याशम के जानिब मुड़े और मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठा रही हैं आप। उन्होंने सुर्ख चेहरा याशम के सामने किया। आपकी बेटी? वो कुछ देर कबल मुझ पर अपनी बेटी की किडनैपिंग का इल्जाम लगा रही थी। मेरे किरदार को जो बुरा भला कहा वो कुछ नहीं। याशम ने इसी अंदाज में जवाब दिया। शोएब साहब ने हैरत से राना की जानिब देखा। राना बाबा की शिकवा कुन नजरों से खफीफ होकर सर झुका गई। याशम अपने रवैये पर अफसोस करते सर झटक कर लब भेंजे रवाना हो गया। याशम। राना उसके पीछे गेट तक आ गई। इसकी पुकार पर याशम रुक गया था। आई एम सॉरी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। राना ने अपने बर्ताव पर शर्मिंदा होते माजरत चाही। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए तो माफ कर भी दूं राना, पर मेरा दिल तोड़ने पर कैसे माफ करूं? याशम के दिल में ठेस सी उठी थी। राना ने भीगी पलकें उठाकर उसे देखा। एक पल को स्याह आंखें हेजल ग्रीन आंखों में मुकैद हो गई। याशम की धड़कन तेज हो गई थी। पलक तक न झपका सका। राना की आंखों में इसके दर्द की दास्तान रकम थी। याशम उसकी तकलीफ को महसूस करता दहल गया। कौन है वो? आपका एक्स हस्बैंड कौन है? वो ही अल्जीना के मामले में आपको परेशान कर रहा है ना? याशम बिना कहे भी राना के दिल की कैफियत समझ गया था। राना ने नजरें नीची कर ली। मुझे सच बताओ, क्या हुआ है? आपके माजी में कौन है? वो डिवोर्स क्यों हुआ आपका? प्लीज राना, मुझे सब सच बताओ। मैं सच जानना चाहता हूँ। याशम इल्तिजा करने लगा। राना ने लंबा सांस खारिज करके बोलना शुरू किया। नौरेस सिद्दीकी। उनका नाम नौरेस सिद्दीकी है। राना उंगलियां मरोड़ती गोया हुई। नौरेस का नाम सुनकर याशम पर मानो आसमान टूट पड़ा था। तमाजी मौसम में बहार की इस खुशगवार शाम बट हाउस के मकीन लॉन में ढेरा जमाए हुए थे। शैब साहब और आतरा बेगम रॉकिंग चेयर पर बैठे चाय से लुत्फ अंदोज हो रही थे और उनके तीनों बच्चे आपस में क्रिकेट खेलने में मसरूफ थे। सदीफ बैटिंग कर रहा था और राना बॉलिंग। हमदान हसब मामूल एम्पायर का किरदार निभा रहा था। राना ने विकेट का निशाना बनाकर बाल कराई तो सदीफ ने बैट ऊपर घुमाकर छक्का दे मारा और कैच। राना बाल को हवा में बुलंद होते देखकर चिल्लाई थी। इसी असना आयत गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। अपने जानिब बाल आते देख उसने लंबा जंप लगाकर बाल कैच कर लिए। यहाँ आउट भैया, आउट हो गए। अपनी जगह पर खड़ी उछल कर राना ने अपनी जीत का ऐलान किया। ऐसे कैसे आउट? आयत तो टीम में ही नहीं थी। हमदान ने एम्पायर का किरदार अदा करते हुए सवाल उठाया। आउट ही है। आयत हमेशा से मेरी टीम में है। मैं जीत गई। राना ने नाक बू चढ़ाते हमदान को तंग किया और आयत के जानिब बढ़ गई। आयत हाथों में गेंद पकड़े शर्मिंदगी से सदीफ को देख रही थी जो बिला वजह आउट होकर मैदान से बाहर जा रहा था। हमदान, चलो अब तुम मुझे बॉलिंग कराए। राना ने आयत के हाथ से बाल लेकर हमदान के जानिब उछाली। सदीफ ने बैट राना को दिया और खुद साइड पर खड़ा हो गया। आयत कैचर से निकलती लटों को पीछे करती उसके पास आई। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था बैटिंग पर आप है, वरना मैं बाल कैच नहीं करती। आयत ने अफसरदगी से माफी मांगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये तो बस खेल है। सदीफ ने खुश अखलाकी से जवाब दिया। आयत उसके जवाब पर पुरसुकून होकर हमदान और राना का खेल देखने लगी। आयत और राना बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थी। अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता पर पिछले कुछ दिनों से आयत की सदीफ के जानिब दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। वो अचानक उसके रूबरू आ जाने पर बलश करने लगती। इसकी ये कैफियत सदीफ से छिपी नहीं थी। वो अपने तरफ आयत की बढ़ती दिलचस्पी से महजूज होने लगता मगर बज़ाहिर खुद को अनजान रखे हुए था। राना, आयत और सदीफ एक ही यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। सदीफ इन दोनों से सीनियर था जबकि राना और आयत एक ही साल की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तालिब उल्मा थी। वो हुई रूजू दोनों ही एक दूसरे से जान निसार करने की हद तक मोहब्बत करती थी। एक दिन वो दोनों यूनिवर्सिटी के फुटपाथ पर साथ साथ बातें करती चल रही थी कि दरख्त के पास खड़े लड़कों के एक ग्रुप ने उनको देखकर बुलंद आवाज में गाना शुरू किया। अब मेरा दिल ये पुकारे आजा, गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है।
समा कभी मिलो तो यहाँ। तब ग्रुप में से एक लड़के की नजरें कभी आयत पर तो कभी राना पर रुकती। राना ने तंदी से उसे घूरा और इस जानिब जाने लगी, लेकिन आयत ने रोक लिया था। छोड़ो, मुंह मत लगो उनके, हमारे ध्यान देने से उनको मजीद शह मिल जाएगी। तो चलो, आयत ने राना का बाजू थाम कर उसे दूसरी सिमत ले जाते हुए कहा। इस दिन तो राना चुप करके चली गई थी, लेकिन अगले कई कई दिनों तक इन लड़कों का यही अमल जारी रहा। ज़बानी हरासमेंट तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन जब इस गाने वाले लड़के ने पास में से गुजरते हुए आयत के कंधे पर टक्कर मारी तो राना से बर्दाश्त न हुआ। है रुको, ये क्या बदतमीजी है, आवारागर्दी करने आते हो यूनिवर्सिटी। राना ने गिराते हुए टोका और वो बीबी डोल को बुरा लगा। चल तो इससे टकरा कर आ, इस लड़के ने जताते हुए कहा और अपने साथी को हिदायत दी। राना चलो यहाँ से। आयत ने परेशानी से उसे पुकारा। राना अपने जगह पर खड़ी सीने पर हाथ बांधे दूसरे लड़के की हरकत और सकनात मुशाहिदा कर रही थी। तो वो लड़का अपने पहले साथी को फखरिया मुस्कुराहट देकर राना के करीब आया था, लेकिन राना ने पूरे ताप से उसे जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। थप्पड़ उतना शिद्दत भरा था ताकि वो लड़का उछलकर गिर पड़ा। पहले साथी की आंखें फैल गई तो दूसरी तरफ आयत ने अपनी आंखें बंद कर ले। आइंदा हमें परेशान किया तो एक एक का मुंह तोड़ दूंगी। राना दोनों उंगली उठाकर गजबनाक तासुरात बनाए इन लड़कों को धमकाया और आयत का हाथ पकड़कर रवाना हो गई। वो चारों लड़के एक दूसरे को देखते रह गए। उसे अपने तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा, उनके ग्रुप लीडर ने नफरत से सोचा था। बर्ट ने डिपार्ट चेयरमैन का बेटा होने के नाते नॉरेस को मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के फौरन बाद ही फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के केमिस्ट्री प्रोफेसर की नौकरी पर फाइज किया गया। वैसे तो नॉरेस शुरू से ही अपने हुस्न पर गुरूर और अपने तालीमी फील्ड में आला कारकर्दगी पर फख्र किया करता था, लेकिन प्रोफेसर बन जाने के बाद उसकी अना सातवें आसमान को छूने लगी। इसके साथ साथ अपनी सहर अंगेज और दिलकश पर्सनैलिटी के बायस वो मुखालिफ जिन्स में काफ़ी मकबूल था। असातिज़ा होती या स्टूडेंट नॉरेस से चंद लम्हे की गुफ्तगू भी कई दिनों तक उन्हें शहर में जकड़े रखती। नॉरेस के इर्द गिर्द सनफ़ नाजुक की कमी ना थी, लेकिन जिस कमसीन और हसीन दोशीज़ा ने इसकी रातों की नींद उड़ा दी थी वो फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की स्टूडेंट नैन अब्दुल-अज़ीज़ थी। नैन अब्दुल-अज़ीज़ खान का ताल्लुक पेशावर के सरसब्ज़ और शादाब वादी स्वाद से था। इस स्वाद की सी खूबसूरती नैन को विरासत में मिली थी। लंबा कद, स्मार्ट जसामत, सब्ज आंखें और भूरे बाल, एक बराबर नाक, गुलाबी होंठ, वो गोल मासूम चेहरा देखकर मुखालिफ जिन्स फरेफ्ता हुए बगैर ना रह पाते। नॉरेस की कैफियत भी यकसां थी, लेकिन वो जिस जज्बे को पसंदगी का नाम दे रहा था वो दर पर हकीकत हवस की भूख थी, जिसकी भेंट एक मासूम जान छड़ने वाली थी। इस रोज केमिस्ट्री लैब में प्रोफेसर नॉरेस सिद्दीकी के जेर निगरानी प्रैक्टिकल चल रहा था। नैन अपनी टीम के साथ खड़ी सफेद कोट और लैब की मखसूस गिलासेस पहने केमिकल्स पर तजुर्बा आजमा रही थी। पाल हटाएं। टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ मिकदार डालकर वो व्हाइट बोर्ड पर लिखे अगले केमिकल का नाम देख रही थी। जब उसकी प्रोफेसर नॉरेस पर नजर पड़ी, वो मुसलसल हसरत भरी निगाहों से उसी को देख रही थे। नैन नादानी और कमरी के दौर में नॉरेस के नजरों की हिद्दत से घबरा गई और टेस्ट ट्यूब उसके हाथ से फिसल कर टूट गया। नॉरेस एक झटके से इसके सर पर पहुंचा और इसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। ध्यान से नैन, ये एसिड है, इसकी एक छींट भी तुम्हारे नाजुक हाथों को जिला सकती है। नॉरेस ने अपने हाथों में लिए नैन के हाथ को उलट पलट कर देखा। नैन की सुर्ख और सफेद हथेली घबराहट से मजीद सुर्ख हो रही थी। उसने सर झुकाकर अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन नॉरेस की गिरफ्त से आजाद न हो सकी। तो बकिया स्टूडेंट तजुर्बात छोड़कर उनका तमाशा देखने लगी। सब अपना अपना प्रैक्टिकल मुकम्मल करे। नॉरेस ने सख्ती से एलानिया सूरत सदा बुलंद की तो स्टूडेंट हड़बड़ा कर अपने काम में जुट गए। तुम चलो, तो तुम्हारे हाथ को वाश करवाते हैं, एलर्जी हो जाएगी। नैन का हाथ थामे वो उसे अपने साथ लैब से मुस्लिक रेस्ट रूम में ले आया। असर मैं खुद कर लूंगी। नैन ने हिम्मत करके अपना हाथ छुड़ाया। नॉरेस के आसाब तन गए थे, पर वो ड्यूटी के दौरान मीज बिहेव नहीं करना चाहता था, इसलिए एक साइड पर हो गया। नैन ने कांपते हुए तेजी से वॉश बेसिन में हाथ धोए और नॉरेस को नजरअंदाज करके इसके साइड से गुजरकर बाहर आ गई। नादानी में उसे यूनिवर्सिटी के सबसे चार्मिंग और यंग प्रोफेसर का अपने लिए परेशान होना अच्छा भी लग रहा था, लेकिन इसकी छठी हिस्स उसे मोहतात भी कर रही थी। ये मौसम गर्मा के एक तपती दोपहर का मंजर है। राना की एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, इसलिए आयत अकेले रवाना हो गई। डिपार्टमेंट से यूनी के मेन गेट तक दरख्तों के माबैन एक लंबा पुख्ता रास्ता था जो आयत को आज अकेले पार करना था। तपती धूप में इस पहर किसी दरख्त के साय तले एक आज स्टूडेंट बैठा नजर आता। आयत अपने ख्यालों में गुम सर पर किताब से साया के चल रही थी जब एक दरख्त के पास उसे वही लड़कों का ग्रुप नजर आया। आयत ठटक कर रुक गई। वहीं लड़कों ने भी उसे देख लिया था। आज अच्छा मौका है, इसकी वो फ्रेंड भी साथ नहीं है, मिलकर धर लेते हैं।
ایک لڑکے نے حقارت بھری نظروں سے آیت کو دیکھتے ہوئے جملہ کسا آیت کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے دائیں سے بائیں کسی گارڈ یا پروفیسر کی تلاش کی پر کوئی نہ ملا۔ آیت مین گیٹ اپنے سامنے دیکھ سکتی تھی۔ اب اتنی دور آ کر اس کے لیے واپس جانا مشکل تھا۔ لڑکوں کے ہاتھوں ہراساں ہونے سے بچنے کی ترکیب سوچتی اسے روش کے دوسرے سمت صدیف اور فواد اختر نظر آئے۔ آیت نے سکون کا سانس لیا اور تیزی سے اس سمت بھاگی۔ ایکسکیوز می صدیف، سر جھکائے تھجکتے ہوئے اس نے صدیف کو مخاطب کیا۔ صدیف حیرت زدہ ہو کر پیچھے مڑا۔ وہ ایکچولی رعنا کی ایکسٹرا کلاس چل رہی تھی، آپ میرے ساتھ مین گیٹ تک آ جائیں گے؟ اکیلے جاتے ہوئے ٹھیک نہیں لگ رہا، آیت نے فیکا مسکرا کر وضاحت دی۔ صدیف سر اسبات میں ہلا کر فواد سے معذرت کرتا آیت کے ساتھ چل پڑا۔ آیت سر جھکائے بار بار گلا تر کرتی مضطرب سی چل رہی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر صدیف نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا اور پھر تیز نظروں سے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ ایک درخت کے پاس 4 لڑکوں کا گروپ اسی سمت دیکھتے ہوئے ملا۔ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے چلے جانے پر وہ ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ صدیف کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ وہ گھوم کر آیت کے بائیں جانب آ گیا، جس سے وہ ان لڑکوں کی نظروں سے چھپ گئی۔ صدیف کی اس تحفظ پر آیت بلش کرنے لگی۔ اس کے دل میں پیار مزید بڑھنے لگا۔ آیت اور رعنا کے فرینڈشپ کے چلتے دونوں فیملیز میں بھی اچھا میل ملاپ تھا۔ رمضان، عید، سالگرہ ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آیت کی صدیف کے جانب بڑھتی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے رعنا نے فائنل ایگزام کے بعد ان دونوں کی شادی کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس شام سب کی موجودگی میں رعنا نے صدیف کی شادی کا موضوع چھیڑا۔ اب میرے خیال سے صدیف بھیا کی اب شادی کرا دینی چاہیے۔ کیوں بابا؟ رعنا نے محظوظ ہوتے ہوئے باری باری سب کو دیکھا۔ ہاں کرا تو دینی چاہیے۔ حشیب صاحب نے سر کو جنبش دیتے حامی بھری۔ آیت کیسی رہے گی؟ کیوں بھیا؟ آیت سے شادی کرو گے؟ رعنا نے بابا کی رضامندی ملتے ہی بولا۔ صدیف اس کے ڈائریکٹ سوال پر گڑبڑا گیا۔ رعنا، ہاں بابا طے کر لیں گے۔ صدیف نے اسے آنکھیں دکھائی۔ رعنا منہ بنائے خاموش ہو گئی۔ اس دوران عاطرہ بیگم اور شعیب صاحب آیت کے معاملے میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ رعنا دل ہی دل مطمئن تھی کہ بابا اور ممی کو اعتراض کرنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ آخر کو اس کی فرینڈ اتنی اچھی جو ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی آتے ہی وہ آیت سے لپٹ گئی۔ وہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہیں عمران ہاشمی کی روح تو نہیں آ گئی تم میں؟ آیت کسمسا کر پیچھے ہٹ گئی۔ عمران ہاشمی تو کوئی اور بن کر دکھائے گا تمہیں، بس تھوڑا اور انتظار۔ رعنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خیالی طور پر آیت اور صدیف کو میاں بیوی کے جوڑے میں سجے دیکھا۔ لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو۔ اٹھ جال میڈم۔ آیت نے اس کا ہاتھ پرے ہٹا دیا اور خود کلاس کے سمت بڑھ گئی۔ رعنا بابا اور ممی کے فائنل فیصلے تک اسے انجان رکھنا چاہتی تھی، نہ پہنچ کھجئی، اس لیے اپنی خوشی دل میں دبا کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آیت اور صدیف کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ اپنے کلاس میں داخل ہوتے امتصال سے روبرو ہوئی۔ امتصال نے تیزی سے اپنے قدم جما لیے ورنہ رعنا سے ٹکرا جاتا۔ سوری میں امتصال نے معذرت چاہی پر رعنا نے ٹوک لیا۔ نو آئی ایم سوری، میں ہی دیکھ کر نہیں چل رہی تھی۔ رعنا نے آبرو اٹھا کر چمکتی آنکھوں سے مسکرا کر معافی مانگی۔ اٹس اوکے۔ امتصال مسکرا دیا اور سائڈ پر ہو کر پہلے رعنا کو گزرنے کی جگہ دی۔ رعنا سر جھکائے بلش کرتی اس کے سامنے سے گزر کر اپنی سیٹ پر آ گئی۔ نظریں اس کی امتصال پر ہی جمی ہوئی تھی۔ دل ہی دل رعنا اسے پسند کرنے لگی تھی، جس کی خبر آیت کو بھی نہ تھی۔ واپسی پر آیت پہلے نکل گئی۔ رعنا کو لائبریری میں کچھ کام تھا۔ صدیف بار بار گھڑی پر وقت دیکھتے آیت کے پاس آ کر رعنا کا پوچھنے لگا۔ وہ لائبریری گئی تھی، پر بکس واپس کرانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ آیت کو بھی فکر ہونے لگی۔ اور میں دیکھ کر آتا ہوں۔ صدیف نے لائبریری کا رخ کیا۔ صدیف، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ آیت اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ وہیں دوسری جانب رعنا بکس لائبریری کے شیلف پر واپس رکھ کر مڑی تھی، لیکن لڑکوں کے گروپ نے اسے گھیر لیا۔ رعنا باری باری ان چاروں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس دن تو بڑی شیرنی بن رہی تھی، آج بھیگی بلی کیوں بن گئی؟ ایک لڑکے نے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ رعنا خود کو کمپوز رکھتے ہوئے دوسرے سمت کے نکلنے کی کوشش میں جھوٹ گئی۔ تھپڑ مارا تھا نہ مجھے، اب میں بتاتا ہوں کیسا لگتا ہے، اس لڑکے نے کہتے ہوئے رعنا کو مارنے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ رعنا نے سہم کر آنکھیں بند کر دی پر اس لڑکے کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ صدیف نے عین وقت پر پہنچ کر اسے روک لیا تھا۔ رعنا نے حیرانگی سے آنکھیں کھولی تو اپنے محافظ بھائی کو اپنے سامنے پایا۔ صدیف کو وہاں دیکھ کر رعنا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ آیت نے آگے آ کر رعنا کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اب میری نظر میں تو اسی دن آ گئے تھے تو تم لوگ، لیکن سبق سکھانے کا موقع آج ملا ہے۔ صدیف نے دانت پر دانت جمائے ہوئے زوردار ضرب لگائی۔ وہ لڑکا جھٹکا کھاتا دور گر پڑا۔ آیت اور رعنا صدیف کے غضبناک تاثرات دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ ایک کے بعد دوسرا ضرب لگاتے صدیف نے ان چاروں کو زمین بوس کر دیا۔ اب بھیا بس کر دو۔
राना ने मुझ सब होते सदीफ को पुकारा, पर वो मुसलसल इन लड़कों पर लातों और मुक्कों की बरसात करता रहा। लाइब्रेरी में तोड़ फोड़ की आवाजें सुनकर लाइब्रेरियन और चंद प्रोफेसर्स ने तेजी से सदीफ को जकड़कर उन लड़कों से दूर किया। राना प्रोफेसर से माजरत करती सदीफ का बाजू थामे लाइब्रेरी से बाहर ले आई। इतना मारने की क्या जरूरत थी? देखो, खुद भी चोट लग गई ना। राना मुंह बनाए सदीफ के हाथ पर लगे जख्म पर से खून को साफ करने लगी। और कोई मेरी बहन के साथ मिसबिहेव करेगा तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। सदीफ का गुस्सा एवज बरकरार था। राना सर झटक कर उसके कंधे से लग गई। सदीफ ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखकर नरमी से थप्पाते तहफ्फुज का एहसास दिलाया। सर, आपने बुलाया? नैन स्टाफ रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर कंकारी स्टाफ रूम में फिलवक्त नौरेज अकेले बैठा था। असाइनमेंट चेक करते हुए नैन की असाइनमेंट हाथ में उठाए उसने मुलाजिम को उसे बुलाने भेजा था। हाँ नैन, आओ, अंदर आओ। नौरेज ने सरता पैरर उसे देखते हुए अंदर आने की इजाजत दी। नैन झिझकते हुए अंदर दाखिल हुई और नौरेज के हाथ में अपना असाइनमेंट देखकर परेशान होने लगी। नैन, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या खुसूसियत है? नौरेज ने थेवड़ी चढ़ाकर पूछा था। नैन को जवाब तो आता था, लेकिन नौरेज की नजरों से मुस्तरिब होकर इस पर लर्जिश तारी हो गई। वो यहाँ। नैन दिमाग पर जोर डालती जवाब दोहराने लगी थी, पर नौरेज खड़ा होकर उसके करीब आया। चलो छोड़ो, मेरे साथ डिनर पर चलोगी? 12 खत है, मैं सारा लेक्चर फिर से करवा दूंगा। ब्लैक पेंट की जेबों में हाथ डाले वो नैन के बिल्कुल रूबरू आ गया। नौरेज की वाइट शर्ट के पहले 2 बटन खुले थे, जिससे से झलकती मजबूत बॉडी देखकर और नथों में पड़ती उसके परफ्यूम की खुशबू से नैन की धड़कनें बढ़ गई थी। तो मैं नोट्स में से पढ़ लूंगी सर। नैन सर झुकाए गोया हुई। नौरेज उसकी मासूमियत पर सर झटक कर मुस्कुराया। नैन, तो तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। अब नोट्स में से पढ़ कर भी तुम दोबारा चेंज नहीं कर सकती, नौरेज ने जताते हुए कहा। नैन की नीली आंखें बड़ी हो गई। उसने सर उठाकर पहले नौरेज को देखा, फिर टेबल पर पड़े अपने असाइनमेंट को। और अपने असाइनमेंट के नंबर्स बचाने हैं तो वीक एंड की शाम तैयार रहना, मैं तुम्हें घर पर पिक करने आ जाऊंगा। नौरेज ने इसके गिर्द घूम कर वापिस अपनी जगह पर आते हुए हुक्म सादर किया। असर, घर पर मत आना, आप जहाँ बुलाएंगे मैं खुद आ जाऊंगी। नौरेज के अपने घर पर आने का सोचकर नैन दहल गई। नैन की बात पर नौरेज की मुस्कुराहट मजीद बड़ी हो गई। ठीक है, मैं एड्रेस मैसेज कर दूंगा, अभी जाए, तुम्हारे क्लास का वक्त हो रहा है। नौरेज ने आगे का लाया ए अमल सोचते हुए उसे जाने का इशारा किया। नैन सर को जंबिश देते स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। संडे के दिन शोएब साहब, आतरा बेगम, सदीफ और राना सिद्दीकी हाउस पहुंचे। इब्तदाई हाल अहवाल दरियाफ्त करके मौजूए गुफ्तगू आयत और सदीफ के रिश्ते पर आई। इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। वारिस साहब, मैं सदीफ के लिए आयत का रिश्ता मांगने आया हूँ। शब साहब ने रिश्ते की पेशकश की। आयत की तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसने जिसको चाहा वही इसका नसीब बनने जा रहा था। दिली कैफियत सदीफ की भी कुछ कम न थी, लेकिन बज़हीर बड़ों के माबैन अपने जज्बात काबू किए हुए रहा। राना ने खुश होते आयत को आंख मारी और आबरू उठाकर तंग किया। आयत मौका की नजाकत को ध्यान में रखते सर झुका गई। शोएब साहब की पेशकश पर वारिस साहब और सुम्बुल बेगम के दरमियान खुशी और हैरानी के मिले जुले तासुरात का तबादला हुआ। बारी बारी बेगम और बेटी को देखकर वारिस साहब खंकारे और बहुत ही खुश नसीब होते हैं ताकि वो वालिदैन जिनको बिन मांगे अपनी बेटी के लिए इतनी अच्छी फैमिली मिल जाती है। मेरे पास अपने जज्बात बयान करने अल्फाज नहीं है। शाब साहब, सदीफ तो घर का ही बच्चा है और अंदर ही अंदर बेटी की जुदाई गमगीन भी कर रही है। वारिस साहब ने साथ बैठी आयत के सर पर हाथ फेरा था। हाँ, आप बेफिक्र रहीं, हम आयत को अपनी बेटी बना कर रखेंगे। आतरा बेगम ने अपने जानिब से इजाफा किया। और मैं समझ सकता हूँ, बेटियां बहुत अनमोल होती है। मेरी भी एक बेटी है। इसकी शादी का सोचकर अक्सर मेरा भी दिल उदास हो जाता है, पर यही तो दुनिया का दस्तूर है, तब बेटियां रुखसत होकर ससुराल जाती है। शोएब साहब ने राना की शादी को सोचते हुए सर झटका। तो फिर आयत आपकी और राना मेरी, तो राना का रिश्ता नौरेज से करा दी। वारिस साहब ने खुश दिली से शोएब साहब के हाथ पर हाथ रखकर थप्पाया। सब में हैरत अंगेज नजरों का तबादला हुआ। ऊपर ये तो विटा सट्टा हो जाएगा। सुम्बुल बेगम के लिए राना को बतौर बहू तस्लीम करना मुश्किल था। ड्राइंग रूम में चल रहे गुफ्तगू पर राना ने परेशानी से पहलू बदला। वो यहाँ आयत और सदीफ का रिश्ता करवाने आई थी, ना कि अपनी बात चलाने हो। आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों को मानता है। बेगम, चारों बच्चे माशा अल्लाह से समझदार है, क्या सब अपनी अपनी जिंदगियों में सेटल हो जाएंगे। क्यों शोएब साहब? वारिस साहब ने बेगम की बात लापरवाही से उड़ा दी। उनके एतमाद से शोएब साहब ने खुशी से सर को जंबिश दिया और राना की तरफ देखा। राना मुस्तरिब होने लगी, पर बाबा ने इसके झुके सर को इसकी रजामंदी संबंधी समझकर रिश्ते के लिए हामी भर दी। सदीफ, राना के चेहरे पर परेशानी जांच गया, इसलिए उसने बात मजीद बढ़ने से पहले मुदाखिलत करना चाही, पर राना ने इसके बाजू पर हाथ रखकर रोक लिया था। मंजूर है वारिस साहब,
शोएब साहब रिश्ता पक्का करते उठ खड़ी हुई। मुबारक हो, डबल रिश्तेदारी मुबारक हो। वारिस साहब चहकते हुए उनके बगलगीर हो गए। आतरा बेगम और सुंबुल बेगम ने भी एक दूसरे को आगोश में भर लिया था। आपस में मिलकर वारिस साहब राना के पास आए और शुलब साहब आयत की जानिब मुड़े। वह दोनों के सर पर हाथ रखकर दुआ दी। फिर वारिस साहब ने सदीफ को जोर से लगाकर उसका शाना थपपाया। आयत और राना ने एक दूसरे को देखा। आयत बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। वो अपनी खुशी में इस कदर मगन थी कि राना की परेशानी जांच नहीं पाई। रिश्ता तय करके जल्द ही मंगनी की रस्म करने का फैसला किया गया और वक्त और तारीख तय करते बट फैमिली रवाना हो गई।